mind and soul and body. And second thing is how we can align ourselves. And mind mastery is a subject because we don't know who we are actually. And whatever the way we perceive this world, whatever the way we think, whatever the way we feel, जैसा हमें दिखता है हम उसी को रियलिटी समझ लेते हैं. जैसा हमने बचपन से सीखा अपने पेरेंट्स से, अपने कल्चर से, अपने आसपास के स्कूल से, कॉलेज से, अपनी एजुकेशन से, नॉलेज से, सब कुछ हम समझ रहे हैं. और जो हमें जैसे हम पैदा हुए तो हमें एक नाम दे दिया गया. You are Pooja, you are born in this family, you are Kayastha. If I'm in education, so I'm a teacher. If I'm in IT sector, so I'm IT professional. If I'm CEO of company, so CEO. So all the labels. I'm Hindu, I'm Muslim, I'm Sikh, I'm Isai. So all the labels come to you. But you are not those labels, right? So we are going to discover that. Also, if we talk about mind, so now we have, if we talk about mind, so what do you understand by mind? That's a question to all of you. Anybody would like to share? What you know about mind? Mind actually is consist of two parts, which I have understood. That is conscious and subconscious mind. I think this is more than. I hope we are not deviating from the topic which we are going through. So the mind is basically two things. That is, one is conscious and the other one is subconscious. And when subconscious mind is our body, and the mind, the conscious mind is that what we think on a daily basis. But what we actually do is based on our subconscious mind only. Our actions, reactions to everything is controlled by our subconscious mind. Sorry, as I told you that I have two kids and they are just disrupting in between. You must be hearing those noises. No, it's fine. It's completely fine. We are natural people, and we might be driving, we might be sitting in office, we might be anywhere. So that's perfectly all right, Ravinderji. So this is what I understand about the mind, and I just wanted to this is what I want to say about mind actually. Okay, great. Thank you, Ravinderji. My pleasure. My pleasure. Yeah. So basically, जो भी आपने बोला एकदम सही बोला है आपने. सबकॉन्शियस और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसकी बात की है. सो दैट इज ग्रेट. एंड दो हम यदि वर्ड इंग्लिश में बोलें तो माइंड, एंड वी यूज माइंड फॉर आवर ब्रेन, वी यूज माइंड फॉर मन, वी यूज माइंड फॉर एवरीथिंग, राइट? But if we talk about our shastras and our whatever coming from Ayurveda and whatever is coming from Shastra, so they say it's not only mind, which we talk about the physical brain, but we have the four aspects. So mind is Man, Buddhi, Chit and Ahankar. So how we can understand the four concepts of mind? So mana is the faculty driven by emotions, like the like and dislike, rag and dvesh. So this is mana. Then second is ahankara. Ahankara means आपकी identity है, जो आपका egoic self है. And then buddhi है. Buddhi means intellect है, जो कि आपकी discriminatory faculty है, जो कि आपको एक wisdom है आपका कि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या आपके हित में है, क्या सभी के हित में है, क्या नहीं है. जो एक विजडम होता है, जो इंटेलेक्ट होता है, वो आपका बुद्धि है. एंड चित्ता इज प्योर अवेयरनेस. दिस इज द चित्ता, योर अटेंशन, योर अवेयरनेस, योर कॉन्शियसनेस. सो माइंड में इतनी सारी जो फैकल्टीज हैं, यदि हम माइंड वर्ड का सही मतलब समझें.
सो बेसिकली हम मन के लेवल पे क्या होता है कि हमारा मन है, हम चाहते हैं कि हमारे मन के मुताबिक चीजें हो, तो देन वी फील हैप्पी. And when we are not getting response from our family members, in our office, from our colleagues or our bosses, or wherever we are in whatever the profession, if the things happening according to my man, if the food is there according to my taste, if the people are behaving according to me, I'm happy, I'm feeling excited. If somebody said something and things not happening according to my mood, thought, feelings, emotions and belief system. जैसे इंडिया में बिलीफ सिस्टम है कि आपको पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, और आप फॉरेन कंट्री में गए और आपने देखा कि वहां पे ड्रेस कोड बिल्कुल डिफरेंट है, दे आर वेरी फ्री पीपल. तो आपके बिलीफ सिस्टम में ये है कि एक फीमेल को ऐसे होना चाहिए, मेल को ऐसे होना चाहिए, वाइफ को ऐसे होना चाहिए, बच्चों को ऐसे होना चाहिए, हमें सोसाइटी में ऐसे रहना चाहिए. सो वो जो आपका बिलीफ सिस्टम वहां पे जहां भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वहां पे आपके मन में डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस आते हैं एंड यू रिजेक्ट दोस. अब ट्रेनिंग क्या है, यदि हम बात करें तो बचपन से जो भी हमारा प्रोग्रामिंग हुई है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है, हमारी बॉडी की प्रोग्रामिंग हुई है. लाइक जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था या साइकिल चलाना सीखा था, कितना टफ था. बट अभी आप क्या करते हैं, नॉर्मली व्हीकल ड्राइव करते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, गाना भी सुन रहे होते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां भी जाना है. सो बॉडी की मेमोरी है, राइट. उसके अलावा आपके माइंड में बहुत सारी मेमोरी फीड हो गई है बचपन से लेके जो भी आपकी एज है. आपने एजुकेशन सिस्टम से सीखा है, एनवायरनमेंट से सीखा है. यदि आप महाराष्ट्र के किसी जगह पर रह रहे हैं तो अलग बिलीफ सिस्टम है, दिल्ली में या कहीं गांव में रह रहे हैं. सो जो भी आपका टोटल थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, सेंसेशन, आपका जो भी वैल्यूज हैं, आपके घर से जो वैल्यूज मिली हैं, उसके अगेंस्ट आप खुद भी करते हैं तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आता है. हमने मान लिया है कि वो एक रियलिटी है. तो बचपन में जैसे मम्मी पापा ने बताया, दोस्तों से हमने सीखा, एनवायरनमेंट से सीखा, उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी दिखता है, पहला हम डाउनलोड कर रहे हैं, एंड बाद में जब थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं तो वी रिजेक्ट थिंग्स, वी रिजेक्ट न्यू आइडियाज, वी रिजेक्ट न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग, वी रिजेक्ट ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिविटी. बचपन में वी आर सो फ्री, वी कैन बी एनीथिंग. कोई डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, राइट. कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि हम एक एज तक हमें कोई फियर नहीं था, कोई थॉट नहीं था, and we wanted to be like anything. So Alok ji, would you like to share something? What's your experience about it? कि बचपन में कैसा था और अभी कैसा है आपका एक्सपीरियंस? ओके, रविंद्रा जी रेज हैंड, सो रविंद्रा जी प्लीज शेयर. अब थोड़ा सा ना मेरा थॉट प्रोसेस दूसरा चेंज होता जा रहा है. एक्चुअली जो आपने अभी बात करी ना, वी वर टॉकिंग अबाउट द दिस फ्रीक्वेंसी लेवल्स, लेट्स से कि हमारे पास जो डाउनलोड हुआ है. अब मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा फ्री हो गया हूँ, because I had been to certain circumstances wherein I came to understand this thought that whatever the things which are going around me are all lies. सब मोह माया है. ये प्रैक्टिकल बात है, मतलब हम ये कह देते हैं वैसे, लेकिन ये होता है. तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे मैं ज्यादा फ्री हूँ. शायद मैं बचपन में नहीं था, मैं शायद अपने यंग एज में नहीं था, लेकिन हाँ मैं ये फील करता हूँ मैं आज की डेट में मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ फ्रॉम एवरीथिंग. वाह रविंद्र जी, व्हाट अ डिस्कवरी यू हैव डन. बिकॉज बचपन में हम पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, टीचर्स हाँ. जो बताते हैं, जो भी हमें बताया जाता है हम उसी को ट्रुथ मान लेते हैं. फिर हाँ. एक एज में हम स्ट्रगल करते हैं, बाद में जो विजडम आता है, जो रियलाइजेशन आता है, सो नाउ यू आर इन दिस मोड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक वाली आपकी वो है, एंड हम चित्ता की तरफ जा रहे हैं, प्योर कॉन्शियस और अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं. वाओ, सच ए ग्रेट जर्नी. थैंक यू. Sachin ji, you want to say anything? Yeah, thank you. Actually, to cut it short, I know बहुत ज्यादा आने लगा है, और बचपन में 4-5 साल तक जो खुल के फ्रीडम में, नो लुकिंग गुड, नो बैरियर्स, कोई लोक लज्जा नहीं है, फुल सेल्फ एक्सप्रेशन में जो जीते थे वो जीना भूल गए. शायद मैं
4-5 साल या 7 साल तक ही जीना जानते, उसके बाद तो फिर सोसाइटल नॉर्म्स, शुडंट्स, एक्सपेक्टेशंस, इसी में जीने भूल जाते हैं. So probably that's what has pulled me here to welcome Amit ji, Amit Thakur, Paresh Soni ji Thank also you, has joined. Sachin. Thank you Sachin. so much. So, Yeah, so- yeah, Sachin ji, you are saying perfectly all right because हमने खुद को जैसा मान लिया है, हम वहीं से ऑपरेट कर रहे थे और अब हमें पता है कि मुझे तो सब मालूम है, ये मुझे क्या सिखा रहा है मेरा बच्चा, राइट? ये कल का पैदा हुआ बच्चा जो है ये मुझसे बात कर रहा है ऐसे, राइट? Great. And especially being a father of two grown up, my elder son is a mechanical engineer and younger one is will be completing his CA. So कभी कभी ऐसे हो जाता, तो मतलब ये अनचाहे वो डायलॉग निकलता है, बाप को मत सिखाना बाप कैसे बनना है, वो भी आई नो से आता है. या तो उसका आई नो पे मेरा आई नो काउंटर रिएक्ट कर रहा है, वहां पे पॉसिबिलिटी या कुछ लव एफिनिटी क्रिएट नहीं हो रही है, वहां पे तू मैं हो रही है, तो वो भी आई नो से डिफॉल्ट मैकेनिज्म से ब्रेन करता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मोर trainings and skills from your teaching to look at how can work on my mind more. Wow, Thank great, you. great, great. So thank you so much, Sachin ji. And we all have. So notice कीजिए कि जब भी आपको कोई बोलता है, आपकी मदर ही बोलेंगी, चाहे वो गलती आपने एक बार की है, 2 बार की है. नॉर्मली हर हस्बैंड वाइफ का देखिए, वाइफ का ये होता है आपने फिर से गीला तौलिया बेड पे रखा और हम हमेशा वही गलती कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और वाइफ भी वैसे ही बोलेंगी और हस्बैंड भी वैसे ही करेंगे. आपने जूते चप्पल सही जगह पे नहीं रखे, वाइफ का हमेशा वो रिएक्शन होता है और आप भी वैसा ही कर रहे हैं, राइट? सो आप देखिए कि आपकी बॉडी की मेमोरी, जैसे आपने उठना बैठना सीख लिया, अभी पोस्चर आपका जैसा बन गया, जैसे आप ग्लास को रखते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे चलते हैं, everything is so habitual and we are in auto mode. We are not able to break those pattern even if पता है कि गुस्सा करेगी मेरी वाइफ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना हैबिचुअल हो चुके हैं हम उसमें कि हम वैसा कर रहे हैं बार बार. एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको. एक पोपट मल जी थे. फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लोग स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं? प्लीज राइट ऑन चैट, तभी हम स्टोरी सुनाएंगे. आर यू इंटरेस्टेड? ओके, थैंक यू सो मच. सो हम एक स्टोरी सुनाते हैं आप सभी को. सो पोपट मल जी को केले खाने का बहुत शौक था. पोपट मल जी डेली केला खाते थे, छिलका ऐसे ही फेंक देते थे और छिलके से वो गिर जाते थे, स्लिप कर जाते थे. अब इतनी हैबिट हो गई थी उन्हें केले का छिलका फेंकने की और फिसलने की कि उनका ये पैटर्न बन गया, उनकी हैबिट में आ गया कि आज उन्होंने ठान लिया था कि मैं तो आज इस हैबिट को बदल ही डालूंगा, राइट? और मैं ऐसा नहीं करूंगा. आज उन्होंने ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए पूरे दिन के अंदर मुझे नहीं फिसलना है. सो नाउ अगेन अपना काम कर रहे थे, बिजी थे लैपटॉप पे. उन्होंने क्या किया? छिलका फेंक दिया और द मोमेंट ही स्टैंड अप, अब ये छिलका मुझे गिराएगा. so, आपके माइंड का पैटर्न ऐसे बन जाता है कि आप जो है अधीन हो जाते हैं. हम जिस तरह से अधीन है उसी तरह से हमारा, लेकिन ये क्या है? ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आपकी प्रोग्रामिंग कर रही है. ये क्या कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है. वन मोर स्टोरी. मुल्ला नसरुद्दीन जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? फेवरेट वन इन स्टोरी, राइट? सो मुल्ला नसरुद्दीन जी रो रहे थे बहुत ज्यादा, तो उनके एक दोस्त उनके पास आए और उन्होंने बोला कि भाई क्यों रोते हो? अरे हमारे मामा जी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मेरे नाम चले गए. अरे तो मामा जी की एज क्या थी? अरे 100 साल जिए. अरे तो रोने की क्या बात है, उन्होंने अपनी लाइफ जी, जिंदगी अच्छे से जी, अब उन्होंने बच्चों की शादी कर ली, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटा ली. अरे भाई कोई अजर अमर थोड़ी ना है, उनको तो जितना टाइम लेना था उन्होंने लिया और चले गए. वाई यू आर क्राइंग? नाउ मुल्ला नसरुद्दीन जी कह रहे हैं नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ताऊ जी भी चले गए, वो भी मेरे नाम जो है
10 करोड़ का घर, इतनी फैक्ट्री, इतना वो सब छोड़ के, इतना सब छोड़ के चले गए, लेकिन वो चले गए। अरे भाई क्या हुआ उन्हें? अरे वो तो ध्यान लगा रहे थे, उनका मोह माया से मन हट चुका था, बट सारा कुछ उन्होंने मेरे नाम कर दिया और छोड़ के चले गए। अरे तो अच्छी बात है भाई, तुम तो धनवान हो गए, तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं, वो सब छोड़ के चले गए, तुम रो रहे हो। अब माना कि प्यार है तुम्हें अपने अंकल से, बट इतना रोना किस बात का? तो मुल्ला नसरुद्दीन जी फिर बोलते हैं, अरे क्या बताऊं, मेरे एक ट्रस्ट में मेंबर थे, उस ट्रस्ट का मैं भी मेंबर था, लेकिन उनको मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था। वो ट्रस्ट उनका अफ्रीका में है, इंग्लैंड में है और यूएस में है, और वो ट्रस्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस ट्रस्ट का सारा वो और अपना घर, अपनी बिजनेस मेरे नाम करके चले गए। अभी भी वो रोए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, सबको जाना है एक दिन, एंड फिर भी वो रोए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलता है? कोई बताना चाहेंगे कि रोए जा रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन जी इन स्पाइट ऑफ, सब लोगों को आज मनी चाहिए, राइट, सब लोगों को सक्सेस चाहिए। अब उनको बिना कुछ किए सक्सेस मिल गई, फेम मिल गया, मनी मिल गया, उनके नाम लोग अपनी प्रॉपर्टी करके चले गए, बट वो रो रहे हैं। व्हाई? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर कि क्या सीखा आपने इससे? या अमित जी प्लीज। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई पैसे की, मैं कैसे मैनेज करूंगा चीजों को। मे बी वो उस माइंडसेट से आ रहे हैं, मे बी। ओके, निवेदिता जी, यू वुड लाइक टू से समथिंग? Yeah, maybe because of the guilt that he didn't do anything, but he got so Okay, much. yeah, anybody else would like to share? Yeah, participants who have raised hand. Yes, Ravindra ji. हाँ जी Yeah. पूजा जी, एक्चुअली उसमें क्या, मुल्ला नसरुद्दीन जी का माइंडसेट ऐसा था बेसिकली कि उनको हर एक उसके ऊपर रोना ही था, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी थी, Okay, उस वजह से वो उनको रोना था, तो इसलिए रोए वो। okay, great. और कोई? उदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ वही बात है, रोने की आदत है। अच्छा, रोने की आदत है। Great, so all valid answers. Uday ji, please mute yourself. So point is, हम लोगों का भी ये हाल है। कहीं देखिए कि हम में भी मुल्ला नसरुद्दीन छुपे हुए हैं, जो हमारे पास है हम उसको नहीं एंजॉय कर रहे हैं, उसमें खुश नहीं है, और जो आ भी गया उसको भी सक्सेस भी आ गई, लेकिन हम सक्सेस को भी बर्डन की तरह देख रहे हैं। अभी आपका प्रमोशन हो गया, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए, आधे लोग परेशान हो जाएंगे, वो बनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। आधे लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन आपके माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है? इतना हेडेक कौन लेगा, इतनी एफर्ट कौन डालेगा? हमें पता है कि हम ये करेंगे तो हम ये सक्सेस अचीव कर लेंगे किसी भी फील्ड में। हमें सारे टेक्निक्स पता है कि हम वाइफ को रोजेस देंगे, उसको कैंडल लाइट डिनर पे ले जाएंगे, उसके साथ हम प्यार से बात करेंगे, या हम अपना लव जो है लेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, या हम अपनी वाइफ को ऐसे बिहेव करेंगे तो शी फील हैप्पी, या मैं उसके लिए आज कुकिंग कर दूंगा। लेकिन इतना बर्डन कौन लेगा कि मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा? राइट? तो सक्सेस आपको रिलेशनशिप में मिल सकती है, सक्सेस आपको बिजनेस में मिल सकती है, प्रोफेशन में मिल सकती है, बट हम सक्सेस को भी डील करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फियर ऑफ फेलियर ही होता है, हमारे माइंड में सक्सेस को भी हैंडल करने का फियर होता है। और जो चीजें हैं आप उसमें खुश नहीं हो, और जो चीजें नहीं है हम उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए हम भाग रहे हैं, राइट? सो इट्स ऑल, दैट्स नॉट यू, दैट्स योर प्रोग्रामिंग. We are conditioned like that in situation. Yeah, Ravindra ji, you would like to say something? This example which I'm quoting is very practical in this situation. अब जिससे शादी करना चाहते थे उससे शादी हुई नहीं, लेकिन जिससे शादी हो गई उससे खुश नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग वहीं लगा हुआ है जिससे शादी नहीं हुई। तो जो आपके पास है आप उसी की तो रिस्पेक्ट कीजिए, वो एक माइंडसेट की बात हो जाती है। I hope this is correlated to this topic only. Yeah, if I'm not wrong. Yeah. Yes. रविंद्र जी, ये घर घर की कहानी है रविंद्र जी। Okay, great. So Preeti is saying he feels that now he too will have to leave everything behind, but he has no one. Yeah, that can be feeling.
So Dimple ji is saying, I'm a student, I always feel stuck because many times I experience many feelings at times. I am unable to say no. Plus all my decisions are driven by emotions, not actual thoughts. Okay, so thank you so much for all your shares. तो हमने समझ लिया इस चीज को कि मन हमारा क्या है, माइंड है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है थॉट्स के लिए, इमोशंस के लिए, परसेप्शन के लिए. लाइक यदि मोबाइल मेरे हाथ में है, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, लेकिन इस मोबाइल से सिग्नल जो आ रहे हैं, मेरा फिजिकल ब्रेन उस सिग्नल को परसीव कर रहा है, राइट? अब वो सिग्नल्स जो हैं, जैसे ही वो सिग्नल्स मुझे आता है, कुछ भी, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती हूँ तो एक सिग्नल फायर होता है, राइट? और थॉट्स क्या आपके ब्रेन में स्टोर हैं? नो. कोई चीज देखते हैं तब आपको थॉट्स आते हैं, राइट? कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो जैसी फीलिंग आती है. एंड मोस्ट फैमिलियर फीलिंग क्या होती है? जो आपकी कंडीशनिंग हो गई है. आपको यदि चॉकलेट आइसक्रीम खाना पसंद है तो चॉकलेट आइसक्रीम देखते ही आपके मुंह में सलाइवा आ जाएगा. आपको यदि ऑरेंज या लेमन पसंद है, यदि मैं अभी भी आपको एक्टिविटी कराऊं तो आपके मुंह में सलाइवा आने लगेगा, आप ऑरेंज या लेमन की फ्रेग्रेंस लेने लगेंगे, राइट? So why people say कि visualization is more important, with feelings it's more important, because आपके brain को नहीं मालूम है what's the reality and what's imagination, right? So that's why we train people कि जो आप अपने आप को बताना शुरू कर देंगे, वैसे आपकी रियलिटी क्रिएट होने लग जाएगी. जो आपको बोलना शुरू कर देंगे, तो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कहीं जाएगी नहीं, लेकिन हम कंट्रोल ले सकते हैं when we train our mind. So that's why mind mastery, how we can train our thoughts, how we can train our feelings, how we can train our mind, right? So man is like thoughts, emotions, and perception. Chit is like purest and highest part of mind. It's responsible for consciousness, perception, and memory. And ahankar is your identity, the ego itself. So ahankar, एक healthy ego is fine. But या तो आप विक्टिम मोड में हैं या आप सुपर ईगो हैं कि आई एम समथिंग, आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, एवरीबडी शुड फॉलो मी, और आई एम द बॉस. इन घर में भी आप बॉस की तरह जाते हैं. अब घर में एक फादर की जरूरत है, घर में एक हस्बैंड की जरूरत है, घर में एक सन की जरूरत है. या आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन घर में एक मम्मी चाहिए बच्चों को. घर में आप ऑफिस में क्या करते हैं उससे लेना देना नहीं है, बट वी आर सो अटैच्ड विद अवर लेबल्स. जैसा ऑफिस में हमारा बिहेवियर होता है वैसा ही घर में हो जाता है. बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा ये कि हम मोड डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल. सो वन हेल्दी आइडेंटिटी. अभी आइडेंटिटी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत लोगों के साथ बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए, बहुत जगह पे लोगों की जॉब चली गई, बहुत जगह पे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए जब उन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को लूज कर दिया. सो नाउ यदि आप जो हैं खुद को किसी जॉब से, किसी पोजीशन से, आई एम सो एंड सो, आई एम द वाइफ, यदि आप रोल से खुद को अटैच कर रहे हैं, इफ यू हैव 500 एम्प्लॉइज अंडर यू, एंड इफ यू आर अटैचिंग विद एवरीवन लाइक दैट, और इफ यू आर अटैचिंग विद योर रोल, तो आप उन 500 में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, यू विल बी क्राइंग, राइट? सो हेल्दी ईगो आपको रखना है. आपको आइडेंटिफाइड सिचुएशन से, पोजीशन से, लेबल से, अपने रोल से नहीं करना है. हु यू एक्चुअली आर, यदि आप उस सेंटर से खुद को रिलेट करेंगे, then we can release all the stress, worries, and anxiety. How many of you agree with that? So this is how we see the world. Yeah, Mitji, thank you. I have seen your hand. And how we are perceiving, how we are receiving things. Okay,